Today I am going to start topic with Assembly 2000 Assembly elections held in Himachal Pradesh. 2017 Assembly elections of Himachal Pradesh. Yesterday I have told you total number of seats in Himachal Pradesh 68. I've told you about Punjab also 117, Uttar Pradesh 404, whereas in Gujarat, Goa only 40 seats. Goa is the smallest state now, that's why. So today we will do about Himachal Pradesh 2017 के assembly elections के बारे में हम करेंगे and from there we can get idea how to do the question answers of this chapter. अगर आप ये समझ गए ना, you can do all the question answers. Is it clear? तो 68 seats in Himachal Pradesh, total seats 68, and BJP party, BJP Bharatiya Janata Party got 44 seats. Yesterday I have told you about majority. Party that gets maximum seats is declared winner. Here BJP ने अपनी majority show की थी, ठीक है? इन elections में BJP showed its majority by getting 44 seats, more than half है, 68. अगर 34 भी लेती तब भी बीजेपी विनर थी, but here बीजेपी got 44 seats in 2017 assembly elections. बीजेपी got how many seats? 44 seats. तो majority किसने प्रूव कर दी? बीजेपी. And rest of the seats were got by, किसको मिली बाकी की seats? Opposition party, or sometimes some candidates they fight elections in an independent way. तो इस वे से हम कहेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड ओपोजिशन पार्टी के पास चलेगी रेस्ट ऑफ द सीट. आउट ऑफ 68, 44 बाय बीजेपी एंड रेस्ट ऑफ द सीट्स बाय won by opposition and candidates who fought the elections in an independent way. So this is about Himachal Pradesh Assembly elections. अब आ गया रोल बीजेपी का. Yesterday I've told you कि मेजोरिटी पार्टी जो होती है, मेजोरिटी पार्टी के एमएलएस 44 एमएलएस जो हैं, members who are elected, they are known as MLA, member of legislative assembly. अब ये MLAs हैं. बाकी के MLAs from opposition party and independent जो candidates हैं, ठीक है? तो 44 MLAs जो हैं, they first of all they select their chief leader. They select their leader. So here these MLAs selected Jairam Thakur. These MLAs of Himachal Pradesh of BJP party selected Shri Jairam Thakur. They selected Shri Jairam Thakur as their leader. ये बच्चे हम 2017 की बात कर रहे हैं. Here these MLAs they selected, किसको इन्होंने select किया? Jairam Thakur as their leader. ठीक? Now Jairam Thakur is appointed as chief minister. Jairam Thakur क्या बन गए? Chief minister. Jairam Thakur is appointed as chief minister by the governor. It means one more question, who appointed chief minister? Governor. Chief minister होता कौन है? Leader of ruling party. और leader कौन select करते हैं? MLAs. MLAs selected their leader. And then leader is appointed as chief minister. He is appointed by governor. इतना आ गया. Now chief minister with the help of governor, chief minister with the help of governor select other ministers. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ. chief minister with the help of governor selected other ministers. ठीक है? चीफ मिनिस्टर ने बाकी गवर्नर की हेल्प के साथ बाकी मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया. तो हियर अब इधर आओ. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज विनर पार्टी, party that shows majority.
अब उसके जो एमएलएज हैं, मेंबर्स जो जीत जाते हैं, दे आर नोन एज एमएलएज। वो क्या सिलेक्ट करते हैं? अपना एक लीडर। लीडर इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, एंड देन चीफ मिनिस्टर विद गवर्नर क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर विद गवर्नर सिलेक्टेड मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, नो लिसन, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? In legislative assembly, MLAs of ruling party and opposition party meet to discuss various things. In legislative assembly, MLAs of ruling party and opposition party का ही पार्ट बन जाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इन legislative assembly, MLAs of ruling party and opposition party meet and discuss various things. And they discuss various things. कहाँ पे डिस्कस करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब some MLAs they get dual responsibilities, double responsibilities. Sometimes some MLAs are given dual responsibilities, double responsibilities दी जाती हैं कई बार कईयों को। For example, they are performing their duty as a MLA and they are selected as ministers by the chief minister. वो MLA की तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, but they are performing the duty of minister also, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें एज ए मिनिस्टर उन्हें डिपार्टमेंट अलॉट किए हैं। Yesterday I have told you chief minister allotted departments to the ministers and it depends upon the wish of chief minister to change their department. So here sometimes MLAs they perform their dual responsibilities, double responsibilities होती हैं इनके सिर पे। First of all they perform their duty as a MLA and they also perform their duty as ministers as they are selected minister by the chief minister, क्योंकि इनको चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर्स सिलेक्ट किया हुआ है and they are given departments by the chief minister. So these MLAs sometimes they perform dual responsibilities. Now is it clear? First we have done about हिमाचल प्रदेश। यहाँ से आपको इतना आइडिया मिला होगा बीजेपी को 44 सीट्स मिली। क्यों बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई? बिकॉज मेजोरिटी किसने शो की? बीजेपी। एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज, मैंने जो बाकी पार्टीज बोली हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्होंने कौन सा रोल परफॉर्म किया इन हिमाचल प्रदेश? ओपोजिशन का। अब ये 44 सीट्स जिनको मिली, मेंबर्स आर नोन एज एमएलए। इन्होंने अब किसको सिलेक्ट किया, किसको चूज किया? एक लीडर अपना, और वो लीडर, दैट लीडर इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। अब चीफ मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ गवर्नर सिलेक्टेड अदर मिनिस्टर्स। And in legislative assembly sometimes हम कहेंगे sometimes होता ये MLAs perform dual responsibilities. Some MLAs perform dual responsibilities as they are performing the duty of MLA and they are also elected minister by the chief ministers. So what is legislative assembly? A place where वहाँ वो ऐसी जगह जहाँ पे आप कहोगे MLAs of ruling party and MLAs of opposition party meet and discuss various things. A place where MLAs of ruling party and MLAs of opposition party meet and discuss various things. Now is it clear what is legislative assembly? अब हमने करना है कि कैसे इनके डिबेट्स। yesterday I have told you about पतालपुरम, ठीक है। Now let's talk about पतालपुरम। अब हम पतालपुरम की बात करेंगे। इसमें पहले तो हम कुछ इनमें आपस में डिस्कशंस करवाते हैं मिनिस्टर्स में, ठीक है, एमएलएस में। एमएलएस की डिस्कशन कैसे होती है? नो लिसन केयरफुली। फर्स्ट, अब जैसे मैं कुछ एमएलएस के, इमेजिन के मैं 5-6 एमएलएस की डिस्कशन बोलती हूँ। नो लिसन, फर्स्ट एमएलए बोल रहा है कि इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो लिसन, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव एंड अखंड गांव का एमएलए। अब वो क्या बोल रहा है? इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea and I think it is shame that
This government has not been able to check the situation. अब ये ब्लेम कर रहा है, इट मीन्स ये एमएलए किस पार्टी का होएगा? ओपोजिशन। और वो क्या कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अखंड गांव में 15 डेथ्स हो चुकी हैं इन द लास्ट वीक। क्यों ऐसे हुआ? डायरिया से लोग मर रहे हैं। वो कह रहा है ये गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सेकंड एमएलए, वो भी देखो क्या कंप्लेंट लेके आ रहा है। सेकंड एमएलए कह रहा है माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बिग सिचुएशन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों बैड सिचुएशन में है। वो कह रहा है व्हाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर इन बैड सिचुएशन। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो देयर आर नो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स आर आउटडेटेड। जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं दे आर आउटडेटेड। तो सेकंड एमएलए क्या पूछ रहा है? व्हाई हॉस्पिटल्स आर इन बैड कंडीशन, हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्यों पुअर है? इफ देयर आर हॉस्पिटल्स देन देयर आर नो डॉक्टर्स and their equipments are also outdated. And third MLA बोल रहा है in my constituency तोलपत्ती, अब उसकी constituency कौन सी है? तोलपत्ती, and he is saying there is shortage of water. उसकी कंप्लेंट क्या है कि in my constituency there is shortage of water. And fourth MLA, आपको कन्वर्सेशन से पता चलेगा he is in the favor, it means फोर्थ वाला जो एमएलए है ना दैट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। अब वो क्या कह रहा है? आई थिंक माय प्लीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ओआरएस पैकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओआरएस पता है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस की फुल फॉर्म ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। बच्चे आपने कभी पिए होंगे ओआरएस, ओरल रीहाइड्रेशन, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। What do you mean by ORS? अब ये रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। Now listen carefully. Views of the MLA of ruling party. Views of the MLA of ruling party. Now listen. My pleas are creating problem. Government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. So this answer is given by, किसने आंसर दिया? MLA of ruling party. Opposition वालों ने ब्लेम किया कि हॉस्पिटल नहीं है, many people are dying due to diarrhea, shortage of clean drinking water है, हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, and outdated equipments हैं. Why this is happening? तो वो answer is given by the MLA of ruling party that my colleagues are creating problems. ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप लिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। गवर्नमेंट ने वाटर टैंकर्स तक प्रोवाइड किए लोगों ने, एंड गवर्नमेंट ने ओआरएस के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए लोगों को। तो दिस आंसर इज गिवन बाय द एमएलए ऑफ रूलिंग पार्टी। अब आपको पता चला कैसे वो एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, नो लिसन, we have very poor facilities in our hospitals. Doctors has gone on a long leave and this is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? अब ये फिर उसने बोला ओपोजिशन वाले ने, you are saying you have distributed ORS packet. How can you sure that these packets reach to all the families of the affected areas? Okay, कैसे आप इसको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि these packets reach to the all the families of affected areas? जैसे अभी कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ने फतेह किट प्रोवाइड की थी जो पेशेंट्स थे, तो वो कई लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई थी। ठीक है ना?
तो इसी वे से वो कह रहे हैं कैसे आप कह सकते हो कि ORS के पैकेट सब फैमिलीज तक पहुंचे, आर यू श्योर अबाउट दिस? कंडीशन इज बिकमिंग बैड इन आवर कंट्री, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये ओपोजिशन पार्टी वाला MLA बोल रहा है। नो, व्हाट्स द आंसर गिवन बाय द MLA ऑफ रूलिंग पार्टी? नो, लिसन, opposition members are blaming the government. कल मैंने बताया था कि ओपोजिशन वाले हाईलाइट्स करते हैं गवर्नमेंट की फेलियर्स को, उसको फोर्स करते हैं फुलफिल इट्स प्रोमिसेस। तो अब ये सब कुछ वही हो रहा है। अब रूलिंग पार्टी का MLA बोल रहा है कि ओपोजिशन के जो लोग हैं, मेंबर्स ऑफ ओपोजिशन, ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन. We have not taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. अब वो कह रहा है कि ये ओपोजिशन वाले ना हमें ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी ना उसने कुछ भी नहीं किया। मींस अब एक मिनट, हमारी कंट्री में क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। अब एक मिनट, एट प्रेजेंट मैं बोलूँ कि कांग्रेस इन पंजाब, कांग्रेस इज द रूलिंग पार्टी। तो अगर कांग्रेस के MLA को कोई भी, पंजाब की बात कर रही हूँ मैं, अगर ओपोजिशन वाले मींस अकाली पार्टी वाले कोई क्वेश्चन करते हैं तो उन्होंने आगे से ऐसे ही कहना है ना कि आपने भी क्या किया था अपने टाइम में। तो सेम हियर इज हैपनिंग। वो कह रहा है कि प्रीवियस पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, वी आर इम्प्रूविंग द सैनिटेशन सिस्टम। तो वो कह रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नथिंग, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। इट मीन्स ये MLAs की आप कहोगे कि आपस में रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन वाले जो MLAs हैं उनकी कन्वर्सेशन है, जो भी मैंने बताई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नोट फॉर पेपर, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के कैसे इनमें कन्वर्सेशंस होती हैं। अब वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, legislative assembly is not only the place where opinions are expressed about the work of the government. यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं एक्सप्रेस किए जाते, जैसे अभी मैंने सबके व्यूज बोले, ऐसा ही नहीं है सिर्फ। नो, लेट्स टॉक अबाउट पतालपुरम। अब हम पतालपुरम की बात करते हैं। पतालपुरम का जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद इमीडिएट yesterday I've read that how people gathered near the house of the MLA of the ruling party, and from the crowd one of the MLA of opposition party was blaming the ruling party, that ruling party is doing nothing, people have to face lots of problems. तो ये सब कुछ वहां पे चल रहा था। आफ्टर दैट, अब इसके बाद अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो सून आफ्टर द डिस्कशन, अब ये मैटर जो पतालपुरम की मैटर था ना, दैट वाज डिस्कस्ड इन द असेंबली। तो वो असेंबली में डिस्कस हुआ था। ठीक है, ऐसे ही होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दैट प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड इन द असेंबली, क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो हमारी प्रॉब्लम असेंबली में लेके जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, और गवर्नमेंट उसे आंसर देगी उस क्वेश्चन का कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो ऐसे ही सेम हैपन, पतालपुरम वाली प्रॉब्लम कहाँ पे डिस्कस हुई? असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वहां पे क्या हुआ? देन देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उसके बाद क्या हो गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि लोग मर रहे थे डायरिया से। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, हेल्थ मिनिस्टर ने उसे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पतालपुरम का जो था, ही ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, आपने देखा होगा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने कितनी बार टीवी पे देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट देयर। Ministers and some government officials were also present, जिन्होंने आंसर देने थे। Ministers explained the steps the government had taken. Reporters asked so many questions, and who were giving answers? हम पतालपुरम की बात कर रहे हैं, असेंबली में डिस्कस हुआ, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड बाय, किसने बुलाई? हेल्थ मिनिस्टर ने। कौन कौन थे वहां पे? पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड देन मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब क्वेश्चंस कौन कर रहे थे? मीडिया वाले।
and who were giving answers? Government officials, they were giving answers. अब नेक्स्ट क्या हुआ? दे वर गिविंग आंसर्स ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक. अब अगले हफ्ते क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पतालपुरम. क्योंकि लोगों ने क्वेश्चनिंग की, न्यूज़पेपर वालों ने उनसे क्वेश्चनिंग की, तो नेक्स्ट वीक उसका रिजल्ट क्या निकला? चीफ मिनिस्टर विद हेल्थ मिनिस्टर विजिटेड द पतालपुरम एरिया, जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी. विजिटेड पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट. एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज हु लॉस्ट, हु वर द सफरर्स. उन फैमिलीज को कंपनसेशन दी जिन्हें लॉस हुआ था, सफर्ड लॉस. चीफ मिनिस्टर सेड that the problem was not only one of the sanitation but also a lack of clean drinking water. He said that high level inquiry committee will be asked. अब पब्लिक वर्क को उन्होंने सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन. अब एक मिनट. चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर विजिटेड द पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट. दोनों गए वहां पे. उन्होंने कंपनसेशन दी किनको? जिन लोगों को उस लॉस हुए थे, ठीक है, जिनके घर के मर गए थे उसमें डायरिया के कारण, है ना. तो कंपनसेशंस वर गिवन टू देम. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ने एक और बात भी बोली कि देयर इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन. सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिल रहा. मीन्स चीफ मिनिस्टर लोगों को अपनी फेवर में ले आया. ऐसी बात करके लोगों को लगा कि चीफ मिनिस्टर इज सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम, नॉट ओनली वन प्रॉब्लम बट अदर प्रॉब्लम आल्सो. फेवर में लाना. देखो कि आपको सिर्फ मैं बोलूँ आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, आपकी तो ये भी प्रॉब्लम है, मैंने तो ये भी सॉल्व कर देनी है. तो इसी वजह से चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हियर द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली ऑफ सैनिटेशन बट पीपल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. उसने कहा यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है. एंड दैट्स वाई उसने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी. एंड ही उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी PWD वालों को. PWD टू टेक केयर द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई. अब PWD की फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. Now I'm going to tell you the few departments of the government: Public Works Department, Agriculture Department, Health Department, Education Department. These are some of the departments of the government. तो चीफ मिनिस्टर ने PWD को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. अब गवर्नमेंट कैन मेक अ न्यू लॉ for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it can make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. ठीक है, गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लॉ बना देती है कि देयर शुड बी, it's the responsibility of municipal corporation to provide clean drinking water to the people and make sure that there are adequate toilets in every urban areas, and health worker is appointed in every village. The act of making law on certain issues is done in the legislative assembly on each stage. अब गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाने हैं वो कहाँ पे बनने हैं? इन लेजिस्लेटिव असेंबली. तो किसको कहा जाता है? टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल एंड चेक whether there are adequate toilets in urban areas, municipal corporation by the state government, and law are passed in the assembly. अगर clean drinking water के लिए कोई law बनना है तो that law is passed in legislative assembly. law कहाँ पे पास होते हैं? legislative assembly में. So this is about the whole chapter. मीन्स अब यहाँ पे आपको ये समझ आनी चाहिए कि कन्वर्सेशन लेजिस्लेटिव असेंबली, आई हैव टोल्ड यू कि वो प्लेस है वेयर आप कहोगे कि MLAs ऑफ रूलिंग पार्टी एंड MLAs ऑफ ओपोजिशन पार्टी मीट एंड डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स, डिस्कस वेरियस थिंग्स. अभी मैंने कन्वर्सेशन पढ़ी. कोई कह रहा है जैसे उसके एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, कोई कह रहा है उसके एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं बट डॉक्टर्स नहीं हैं, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं. कोई कह रहा है कि उसके एरिया में कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है एंड कितने लोग मरते जा रहे हैं ड्यू टू डायरिया.
तो इस वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलएज दे आर टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड हियर आपको मैंने ये भी बताया कि हाउ द एमएलएज ऑफ रूलिंग पार्टी दे आर गिविंग देयर आंसर्स, कैसे उनको आंसर्स दे रहे हैं कि ये लोग हमें ऐसे ही फालतू में ब्लेम कर रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया था, हम तो फिर कर रहे हैं। तो इस वजह से वो साथ में श्योरिटी दे रहे हैं कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओआरएस पैकेज, वी हैव प्रोवाइडेड वाटर टैंक्स। तो अगर किसी एरिया में वाटर शॉर्टेज थी तो वी हैव प्रोवाइडेड वाटर टैंक्स देयर एंड ओआरएस पैकेट्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया वेयर पीपल डाइड ड्यू टू डायरिया। तो फिर वो उससे पूछ रहे हैं, रूलिंग पार्टी से फिर पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू मेक हाउ आर यू श्योर कि पैकेट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय योर पार्टी दे रीच टू ऑल द फैमिलीज, सारी फैमिलीज ऑफ द अफेक्टेड एरियाज के पास क्या वो पैकेट्स पहुंचे, आर यू श्योर अबाउट दिस? तो ये कन्वर्सेशन है इन असेंबली में चलती है, ठीक है। आफ्टर दैट अब पतालपुरम में जो प्रॉब्लम हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड बाय, किसने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हेल्थ मिनिस्टर। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा कि हम कंपनसेट करेंगे जिन लोगों को लॉस हुआ, ठीक। सेकंड उन्होंने कहा वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, not only the sanitation problem but also clean drinking water will be provided to you। लोगों को और एक फैसिलिटी देने के लिए बोल दिया ताकि लोग शांत रहें, प्रोटेस्ट ना करें। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, बैठाई और पीडब्ल्यूडी वालों को बोला कि ये सब इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। एंड देन गवर्नमेंट क्या करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कई बार ऑर्डर भी किया जाता है टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड also check whether the sanitation facilities are proper given to the people, whether the adequate toilets are there in urban areas. So for this laws are made and these laws are made in the legislative assembly, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक, tomorrow we will do question answers। चलो अभी 1 मिनट आप डिस्कस करते हैं आपसे, आप मुझे बताओगे, use the term constituency, I have told you, and represent to explain who an MLA is and how is the person elected। This question has two parts, हैं। Second part आपने डिटेल में लिखना है because second part is how is the person elected। Use the term constituency and represent to explain who an MLA is। तो MLA कौन होते हैं मुझे इतना बताओ, belonged to political parties or sometimes they fight elections in an independent way। MLAs political party को belong करते होते हैं और sometimes they fight elections in an independent way। क्वेश्चन इज, आपको इसमें how are MLAs elected भी बताना है। MLA is a person, MLA is a person belonged to political party or independent who represents a constituency। MLA is a person who belong to political party or independent who represents a constituency। कौन होता है MLA? MLA is a person who belong to political party or independent who represents a constituency। And B part is how MLA is elected, you know it very well। क्या होता है सबसे पहले, MLA is elected by people through elections। यही है ना मेन आंसर, यस साविया। कौन देगा आंसर? साविया। आप अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। MLA is elected, very good, so many students are ready to give answer। how MLA is elected? MLA is elected through elections। The political party that got maximum votes is elected as the ruling party। Yes, person who get maximum vote in the constituency
is declared winner and he becomes, उसे क्या कहा जाता है? MLA. Harmeet, yes, good. Savia, MLA. Harmeet, hurry up. Harmeet, I have unmuted you. Harmeet, be quick. Yes, ma'am. Yes, be quick. Each state has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. Constituencies, yes. Good. चलो आपको knowledge. MLA is elected by people Very good. who contest in election by voting. Through elections. Good. Gaurish, hurry up, Gaurish. Yes, ma'am. To elect the members to elect the MLA members, the whole state is divided into small parts that are called constituencies, and in that there are elections, and the party and the political party that has large number of votes becomes the majority party of that constituency. Good. चलो अब हम एक बार इसे फिर करते हैं, ठीक है? Now I am going to help you how to do this question. First of all, तो mute yourself. Those who have given answer, mute yourself. Now listen carefully. Who is MLA? First, पहले तो अभी ये बताओगे, MLA is the person belong to political party or independent who represents a constituency. How is MLA elected? पहले तो अभी he is elected by people through election. He is elected by people through election. As Savia told, he is elected by people through election. यही बात हरमीत ने बताई and same Gaurish. He is elected by people through elections. People cast their vote according to their choice. अब लोग अपना वोट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालते हैं. Person who gets maximum number of votes is declared elected. जिसे ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो is declared elected. Person who gets maximum votes is declared elected. The elected representative is called an MLA. Person who gets maximum votes is declared winner, is elected, and elected person is known as an MLA. Person who gets maximum number of votes is declared elected, and elected representative is called an MLA. Elected representative क्या बन जाता है? MLA. So rest of the questions we will discuss tomorrow.